क्योंकि आई थिंक सोसाइटी में ये चीज़ काफ़ी डीप रूटेड है कि अल्कोहल बियर पीने से स्टोन साफ़ हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, नहीं बनेंगे। पर ये बहुत वैलिड आइडिया नहीं है, क्योंकि बेसिक आइडिया है कि अगर स्टोन कहीं ट्यूब में फंसी हुई है, कोई ड्रिंक करता है, बियर पीता है, तो शायद यूरिन थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से बनता है और स्टोन पास होने के चांस बढ़ जाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि बियर ने कुछ कमाल किया है। हॉस्पिटल गुड़गांव, सो इट्स a about 600 bedded hospital, state of art facility, almost catering to all sections of society and with all the latest armamentarium. So let me first discuss a little bit about what a urologist does, because there are urinary infections. I'm Dr. Arun Sharma. I'm a hepatologist and gastroenterologist working in Jammu at Apollo Gastro Liver and Gynae Clinic. Today's meeting was very wonderful meeting. There was a very nice presentation from Dr. Sandeep Harkar, who is a very reputed urologist from Artemis Hospital, and he is visiting to Jammu once, and this is very good news for the Jammu people. That very experienced urologist is visiting to our city, and he is providing his services here. And we would like to have such meetings frequently, and would wish him all the best for the future also. It was really wonderful and thought-provoking and very informative. I would love to attend more and more of such discourses. And Dr. Sandeep is a wonderful urologist. We want to interact and learn from him. It was nice seeing Dr. Sandeep after a long time. I felt very happy to find him as a wonderful urologist, that too robotic urologist. I have all praise for him and wish him all the success in life. Dr. Sandeep has been an excellent student. He's a wonderful urologist, particularly he's doing robotics. It's a pleasure to know about that. We wish him all the success. Thank you, sir. Thank you so much. Hi, I am Dr. Gurpal Singh from ESCOM's Hospital Jammu, and I am a first year surgery resident over there. And tonight, it was my pleasure meeting Dr. Sandeep Harkar for urology lecture, and it's a privilege for us and our community to have a doctor like him. And I will be looking forward to him as a mentor also, as I wish to join urology as a super specialty. So tonight was a great. I thank Sandeep Harkar. Today we had a very good interactive session with the doctors in Jammu regarding the management of kidney stone disease, which is a very strong prevalence in the society. तो हमारा ये मोटिव था आर्टेमिस टीम और मेरा कि हम थॉट्स शेयर करें लोकल प्रैक्टिशनर्स डॉक्टर्स के साथ, अपने उनके थॉट्स जानें ताकि हम बेहतर मैनेज कर सकें किडनी स्टोन डिज़ीज़ को। तो आज बहुत अच्छा रहा, लाइवली प्रोग्राम रहा हमारा, एंड वी आर वेरी हैप्पी कि लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स जॉइंड अस फॉर दिस प्रोग्राम। आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। इस जो आज सेशन रहा, इस सेशन के रिगार्डिंग किसके रिगार्डिंग था, क्या कुछ आप बताना चाह रहे थे डॉक्टर्स को, थोड़ा सा उस पर आप ब्रीफ कीजिए। देखिए, कई बार हम देखते हैं किडनी स्टोन डिजीज़ जो बहुत आम है सोसाइटी में, उसकी मैनेजमेंट के प्रोटोकॉल्स डिफाइंड नहीं होते हैं। जैसे कई बार हम अल्ट्रासाउंड से ही किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट करते रहते हैं और पता लगता है कि बाद में स्टोन ट्यूब में फंसी हुई है और किडनी का नुकसान होना शुरू हो गया। तो यही चीज़ें थोड़ा हाईलाइट करना चाहता मैं कि हमें फॉलोअप रखना चाहिए पेशेंट्स का, ताकि ये कंफर्म हो जाए स्टोन पास हुआ कि नहीं हुआ। कई बार कुछ अलग तरह की दवाइयाँ दी जाती हैं या देसी इलाज कुछ टाइप के, कई लोग तो इवन कहते हैं कि भाई आप ड्रिंक्स बियर वगैरह लो स्टोन निकालने के लिए। कुछ धारणाएं हैं हमारी सोसाइटी में जो लॉजिकल नहीं है, तो हम इन्हीं चीज़ों पे हम डिस्कशन कर रहे थे एंड अपने थॉट शेयर कर रहे थे। तो दैट वाज द बेसिक आइडिया। और जैसे अभी आपने कहा ड्रिंक्स के बारे में, तो कुछ डॉक्टर ने भी बात की थी और ये बताएं कि जैसे बियर के बारे में बताया जा रहा है कि बियर पीजिए और स्टोन का, तो डॉक्टर मेरे को बताइए क्या ये जो धारणा एक बियर वाली है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये बहुत आम तौर पे मेरे पास ये मरीज़ ये लेके आते हैं कि भाई हम
क्योंकि आई थिंक सोसाइटी में ये चीज़ काफ़ी डीप रूटेड है कि अल्कोहल बियर पीने से स्टोन साफ हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, नहीं बनेंगे। पर ये बहुत वैलिड आइडिया नहीं है, क्योंकि बेसिक आइडिया है कि अगर स्टोन कहीं ट्यूब में फंसी हुई है, कोई ड्रिंक करता है, बियर पीता है, तो शायद यूरिन थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से बनता है और स्टोन पास होने के चांस बढ़ जाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि बियर ने कुछ कमाल किया है। वो तो एक्चुअली अगर वाटर इनटेक अच्छा रहेगा, पानी की मात्रा अच्छी रहेगी, तो वैसे भी फ्लश आउट हो सकता है। सिमिलरली जो लोग रेगुलरली ड्रिंक करते हैं ये सोच के कि स्टोन नहीं बनेंगे, ये उल्टा हो रहा है, क्योंकि उसकी वजह से ऑक्सीलेट्स की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है, खून में बढ़ जाती है, जो पेशाब में ज़्यादा निकलता है और स्टोन ज़्यादा बन सकते हैं। तो ये उल्टा हो जाता है। तो ये चीज़ हमारी आई थिंक ये सोसाइटी में जानी चाहिए कि ड्रिंक्स का कोई बेनिफिशियल रोल नहीं है स्टोन मैनेजमेंट में। आपने रोबोटिक सर्जरी के बारे में भी बताया, तो उस पर भी थोड़ी सी आप जी, रोबोटिक सर्जरी के बारे में हमने डिस्कशन किया। ये एक नई पद्धति है सर्जरी की। जैसे पहले ओपन तरीके से ऑपरेशन होता था, चीरा लगा के होता था, फिर लेप्रोस्कोपी से होने लगा, जैसे कोई छोटे मोटे छेद करके ऑपरेशन किया जाता था। अब उसी का एक एक्सटेंशन है कि रोबोट की मदद से सर्जरी करते हैं। जो सर्जन है अपने हाथों से मशीन के पुर्जों को हिलाता है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर कुछ ऐसी मूवमेंट्स करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स और सर्जरी होती है। सो इट्स ए मोडेलिटी विच इज ऑपरेटेड बाय द सर्जन, बट विद द हेल्प ऑफ रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स जो सर्जरी बिकम्स मोर प्रिसाइज, ज़्यादा सही तरीके से हो पाती है और कॉम्प्लिकेशन रेट्स कम हो जाती हैं, ब्लीडिंग कम हो जाती है। तो ये एक इवॉल्विंग पद्धति है। बड़े शहरों में तो बहुत कॉमनली अब रोबोटिक सर्जरी हो रही हैं, और इसके बारे में बात हुई कि कई सारी सर्जरीज ऐसी हैं जिनमें रोबोटिक सर्जरी का बहुत महत्व है, बहुत फ़ायदा हो रहा है। जैसे अभी आप डॉक्टर्स के उनको तो आपने कर दिया, तो क्या जो जनरल पब्लिक है कि उनकी अवेयरनेस के लिए भी कुछ ऐसे कार्यक्रम करने के आगे आपका कुछ प्लान है? बिल्कुल। मेरा बेसिक मकसद ये है कि हम जितना भी हो सके कम्युनिटी लेवल पे जाके जो डॉक्टर्स के थ्रू और अलग अलग प्रोग्राम्स जो सोसाइटी में प्रोग्राम्स करके इस बात को हमारी यूरोलॉजी की नॉलेज बढ़ाएं लोगों के बीच। जो आम प्रॉब्लम्स आती हैं, कैंसर्स के बारे में नॉलेज बढ़ाएं, प्रोस्टेट कैंसर की जो प्रॉब्लम है जो बहुत ही कॉमन है उसको भी हाईलाइट करें, सो दैट पीपल बिकम मोर एंड मोर अवेयर। और अगर लोग आपका जैसे आर्टमिस की तरफ से आप हैं, तो अगर इनसे कांटेक्ट करना चाहें, कुछ पूछना चाहें आपसे, तो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि क्या जम्मू में कोई ऐसा है यूनिट ऐसा आर्टमिस का? ऐसे जम्मू का हमारे यहाँ पे OPDs लगती हैं, तो यहाँ पे हमारे सेंटर्स हैं जिनकी डिटेल्स आपको प्रोवाइड की जा सकती हैं। तो वहाँ पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। उनके वहाँ पे हमारे डॉक्टर आते हैं, मेरा कंसल्टेशन होता है, जिसकी वजह से वो हो सकता है। सेकेंड थिंग, अगर किसी को कोई इमरजेंसी है तो उनके लिए हमने स्पेशली वीडियो कंसल्टेशंस रखी हुई हैं, ताकि पेशेंट का ट्रीटमेंट डिले ना हो। कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? तो हमारी सेंटर्स हैं यहाँ पे, उनके नंबर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसके थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं।